चलिए प्रभात जी, आप शुरू कीजिए फिर। हाँ 9th चैप्टर ही चल रहा होगा ना? हाँ, 9 से हम लोगों ने 19 तक कर दिया था। अच्छा, तो 19 को ऐसे तो 20 से ही दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, लेकिन 19 को पढ़ लेते हैं। हाँ। तपा तपाम्यम अहम महम वर्षम निग्रह उत्सजामि च अमृतम च मृत्युक्ष सदस सदश्चा हम अर्जुना। I am the heat, I am the rain, I withdraw and send forth immortality and death. Being and non-being am I, O Arjuna. Verse 20. Traya vidya mam somapava puta papa yagya ristva swargatim prarthayante te purnamasad surendra lokam ashnanti divyan divi dev bhogan. Knowing the Vedas, drinking soma, purified of sin, desiring heaven, some seek me through sacrifice. Reaching the sacred realm of Indra, they enjoy divine pleasure in heaven. Te tam bhuktva sargalokam vishalam, chide purne martalokam vishanti, evam tri dharman aman dharmanu prapanna, gata gatam kama kama labante. After enjoying that vast heaven, they enter the mortal world when their merit is exhausted. Thus, according to Vedic teaching, those who desire pleasures get reborn. Verse 22. Ananya ashidde yanto mam ye jana paryu upasate tesham nitya abhiyuktanam yog chemam vaha aham. But those who think only of me, people who worship me, for them, always thus engaged, I grant possessions and protection. Verse 23. Ye apanya devata bhakta yajantri shraddha vinta te api mamem kaunte yajannad vidhi purvakam. Even those devoted to other gods, worshipping with faith, they also worship me, O Arjuna, though not according to rules. Aham hi sarva yagya nam bhokta cha prabhurev cha na tu mama bhajanti jananti tatve nath shravanti te. For all sacrifices I am the enjoyer and Lord, but those who do not know me as I truly am, they descend. Yan, verse 25, Yanti deva vrata devan Prityan yanti pritrvata, bhutani yanti bhutetya, yanti mad jino api mam. Those who devoted to gods reach the gods. Those devoted to ancestors reach the ancestors. Those who worship spirits reach the spirits. And those who worship me reach me. Verse 26. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhakti ubhritam ashnami prayantam mana. A leaf, flower, fruit, or water offered to me with devotion, that which is offered with devotion I accept from one whose heart is pure. Verse 27, Yak karoshi yad shanasi yajjuho ashi dadasi yat pasyasi kaunte tat kurvashva mad paranam. Whatever you do or eat, whatever you sacrifice or give, whatever austerity you perform, O Arjuna, do that as an offering to me. यहीं पर रुकते हैं. ठीक है।
19 तक तो हम लोगों ने कर लिया था. We were talking about that I am everything. I am the rain, I am the sun, I am the heat. तो 20 से जो है ये अब थोड़ा सा चेंज हुआ है. तो मेरा before we get into this, but I think everything is related to Brahman, both Sagun and Nirgun. अब ये 20 में इन्होंने एक चेंज किया है कि वेदास के ऊपर चले गए. एंड ड्रिंकिंग सो मच. इंग्लिश में तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, समझ में नहीं आया. तो भाई इतना पता लग रहा है जो people who are devoting their worship are to get to heaven, that is temporary in nature, because they will go there for some time and they will come back after their good deeds. Fruits of the karmas are exhausted. लेकिन ये एक चीज ये नहीं सोची, ये knowing the Vedas, drinking soma purified of sin, ये इससे क्या रिलेशन है? First, before you go on, Prabhakar question, इसमें जो 19 वाले में, I think you said it, but I just forgot. जब ये कहता है लास्ट में सत असत भी मैं ही हूँ. I'm immortality. I am the death. I am the immortality. सत मैं जिस तरीके से सत असत को पढ़ रहा हूँ, मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा वो लगता है. हर्ष, what is your opinion? ये सत असत मतलब वही ट्रूथ और लाई वाली बात है या it meaning something else here? Something You else. want- Something else. Yeah, that's what I'm thinking because that's bothering me. That's why. सत कहते हैं वो जब that is eternal, that is true. असत कहते हैं that is not eternal. तो उसमें उस भाव से देखिए आप. I am the eternal and I am the non-eternal also. I am the Maya as well as the absolute truth, eternal existence. But इससे फिर ये होता है क्वेश्चन कि भाई what is the difference कि अगर मैं सत्य के साथ चला जाऊं जब मैं वो भी वही है, वो भी वही है. इसीलिए आगे के श्लोक में वो बता रहे हैं ना हाँ, कि आप किसी देवता के पास जाओगे वहां पहुंचोगे, पितृ के पास जाओगे वहां, और भूतानी के पास जाओगे तो वहां. इसीलिए वो बता रहे हैं. इसी को आगे से थोड़ा सा उन्होंने वो किया है. अब देखिए स्वर्ग नरक की बात आ जाती है यहाँ फिर से. मुझे उम्मीद थी कि शायद इसके बारे में कुछ आप बात करोगे. हाँ नहीं, वही वो मेरा क्वेश्चन ये था यहाँ से कि जो सिंपल मीनिंग तो ये है कि बेस्ड ऑन और fruits of the karma, if I have done a lot of punya karma, then I get heaven, right? And then once I go to the heaven, then all the fruits are, when all the fruits are exhausted, I return back to the this present world. That means I have not reached nirvana, I have not enlightened, so I will take rebirth again, right? मेरा जो वहां से एक क्वेश्चन ये था कि वो वेद और सोम और वो उसके रस की बात कहाँ करने लगे 20 में 20th में. यज्ञ की क्या परिभाषा दी गई थी आपको याद होगा शायद. वैसे तो हम भक्ति भाव में और वो हवन करते हैं तो हम कहते हैं यज्ञ कर रहे हैं. और अगर आप उसी को ले लें तो उसके बाद में जो प्रसाद बनता है, वो जो प्रसाद दिया जाता है, उस प्रसाद की क्या खूबी होती है? वही सेब, वही एप्पल बाहर भी खा सकते हो और वो यज्ञ करके भी खा सकते हो. और दोनों में क्या फर्क है? उसमें शक्ति, जो भगवान का जो शक्ति भाव है वो उसमें आ गया, उसमें प्योरिटी आ जाती है. हाँ ठीक है ना. तो हम भक्ति भाव में हमें हमेशा प्रसाद जो है, प्रसाद बुद्धि देता है, शांति वाली बुद्धि, प्योर बुद्धि वो देता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी प्योरिटी वाली आ जाती है. इसलिए वो सेम एप्पल जो है वो डिफरेंट हो जाता है.
प्रसाद के रूप में। बट यज्ञ की दूसरी परिभाषा जो जो ज्ञान के उसमें देखी जाती है वो ये होती है कि एनी एक्शन, एनी पॉजिटिव एक्शन dedicated to the ultimate truth for the benefit of others without a selfish and selfish motive is called a yajna, जिसमें अपना अहंकार ना हो, पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, दूसरों के भले के लिए हो और पॉजिटिव हो, ऐसा कर्म जो है उसे यज्ञ बोलते हैं। तो ऐसा कर्म करने के बाद में उसका जो फल होता है उसको हम उसका प्रसाद बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोम रस। तो ज्ञान के रूप में जब भी आप पॉजिटिव एक्शन इस तरह से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है जब आप उसको धारण करते हैं तो दैट बिकम्स लाइक ए प्रसाद फॉर यू। सो भक्ति भाव में प्रसाद है, क्यों? क्योंकि आपने ध्यान लगाकर पॉजिटिव एनर्जी, शक्तियां भगवान की उस चीज में डाली है जिसको आप बाद में ग्रहण करने वाले हैं। एप्पल ही नहीं है, मतलब कोई भी चीज हो हाँ, सकती कोई है, भी वो है। ये खाने की ही नहीं है। प्रसाद रूप के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि खाने की ही चीज होती है, आपको कोई छोटी सी चीज जो जेब में रखने के लिए मिल जाए वो भी प्रसाद माना जाता है, क्योंकि वो हर चीज के अंदर आपने उस वातावरण में भगवान का नाम लेकर के उसके अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उनको आपने क्या कहते हैं उसको जागृत कर दिया और उसको उसको प्रसाद। पर ज्ञान के रूप में जब ज्ञान और कर्म का जो संबंध आता है, क्योंकि ज्ञान तो बिना कर्म के अधूरा है ना, कर्म बिना ज्ञान के अधूरा है और ज्ञान बिना कर्म के अधूरा। तो जब ज्ञान और कर्म के रूप में उसके यज्ञ की परिभाषा करते हैं तो वो यज्ञ बनता है डिवोटेड, दूसरों के लिए, सेल्फ नहीं होता जिसमें, और पॉजिटिव होता है। तो ये सारा जब काम करते हैं, जब ये वाला कर्म होता है, इस ज्ञान के साथ कर्म होता है, उसके फल को भी हम यज्ञ का फल बोलते हैं। तो भक्ति में, ज्ञान में और कर्म में इस तरह से ये जोड़ता है सारा। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब इस तरह के कर्म करके आप ज्ञान के रूप में देखोगे तो इस तरह के कर्म करके जो लोग हैं, और भक्ति के रूप में देखोगे तो वैसे। तो सोम रस जो है उसको उसका रस बोलते हैं। ये जो सैटरडे की रात को बैठ के सोम रस का पान होता है वो वाला नहीं होता। आई नो, मुझे पता था कि वो नहीं है, लेकिन क्या है दैट इज नाउ क्लियर। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो कर्म और भक्ति को जोड़ रहे हैं। तो अब क्योंकि उन्होंने आगे जो अभी ये अशोक ने जो बात की थी सत असत की, और भगवान वहां ले जा रहे हैं, तो ये ब्रिज बनाया उन्होंने। अभी आप स्वर्ग और स्वर्ग की बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि आप इनमें से सवाल पूछोगे स्वर्ग होता भी है कि क्या है। जब आपको पता है कि हमारा ये क्वेश्चन होगा तो आप समझ लो हमने कर लिया क्वेश्चन। मैं वेट कर रहा हूँ कोई पूछे। राम विनोद जी पूछते हैं मगर पूछा ही नहीं आज। मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि पिछले उसमें पता नहीं क्या क्या हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो खोल लेता हूँ उसका श्लोक। इंद्रलोक है ना, इंद्रलोक बोला है ना उन्होंने। इसका एक बहुत अच्छा मेरे को एग्जाम्पल याद आया, जैसे कहते हैं रिवील हुआ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा, आपको भी शायद लगेगा। आपने बारिश के दिनों में इंद्रधनुष देखा होगा, हाँ हाँ, रेनबो या इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष की क्या खूबी है, उसके अंदर जो 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 कलर्स होते हैं ना, सातों कलर आ जाते हैं उसमें। हाँ, जो इंद्रधनुष के जो कलर हैं उनका ओरिजिनल कलर वाइट है,
हम्म, उसके सातों कलर हो जाने के बाद में वो इंद्रधनुष कहलाता है। ओरिजिनल कलर वाइट जो है उन सातों कलर में से निकाल नहीं सकते आप, तो जैसे ही निकालेंगे वो कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट के अंदर सारे हैं ना। बट जब तक वो 7 कलर के रूप में है तब तक उसकी एक अपनी आइडेंटिटी, अपना एक रेल्म है, उसका एक अपना वर्ल्ड है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी जो शक्ति है, प्राण शक्ति कह लीजिए या दूसरी शक्ति कह लीजिए, उसको, उसका भी जो सोर्स है वो तो एक ही है, बट उसके जो भाव हैं जिसको हम कलर बोलते हैं इंद्रधनुष में, वो भाव बन जाते हैं हमारे अपने भूतानी में, वो अलग अलग हैं। और प्रभात आप तो क्योंकि उनको चक्र वगैरह से जोड़ते हैं हमेशा, तो 7 कलर के हमने आपको चक्र भी बताए हैं, हम्म, और हर चक्र का एक भाव अलग है, ठीक है ना। जो जो हृदय का चक्र है अनकंडीशनल लव। अनहत वाला, वो अनकंडीशनल लव का है। जो आपका अजना चक्र है, जो थर्ड आई जिसको बोलते हैं, वो तीनों लोगों को पार करने वाला भाव है। कालातीत, काल को छोड़ के समय से आगे जाने वाला भाव है। तो हर चक्र का भी भाव अलग है। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। जब जो व्यक्ति है, जो जिसका मृत्यु समय जब आता है, तो सारे जीवन में उसका कोई ना कोई भाव जो है प्री डोमिनेंट रहता है, और उस प्री डोमिनेंट भाव के साथ में ये नहीं कि बाकी भाव खत्म हो जाते हैं, बाकी भाव भी होते हैं, बट उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो जब आदमी इस शरीर को छोड़ देता है, तो उसकी जो जीवात्मा है वो उस भाव के संसार में जुड़ जाती है। जैसा भाव है उस भाव का जो लोक है, उस भाव लोक में वो जुड़ जाती है। तो जैसे अगर इंद्रधनुष के साथ कंपेयर करें कि मान लीजिए कि मेरा भाव जो था वो येलो कलर के बराबर था। येलो कलर का मतलब होता है आइडेंटिटी, अहंकार, अहम। तो मान लीजिए कि मेरा भाव येलो के साथ में था, तो मृत्यु के बाद में उस भाव की शक्ति के रूप में उस लोक में, जो शक्ति लोक है जिसमें हर भाव है, उस लोक में उस भाव के साथ में वो जाके जुड़ता है। और ये भाव जो हृदय और उसके ऊपर की जो शक्तियां हैं, जो जो वाइब्रेशंस हैं, वो स्वर्ग रूप में है, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है वो बड़ा पॉजिटिव हार्मोनियस है। और जो नीचे के हैं वो नर्क रूप में है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो बड़ा डिसहार्मोनियस है। ओके, तो बिलो जब हार्ट चक्र के जितने भी हैं ये 3, स्वादिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार, दे आर ऑल, would you say they are all not pure, or you will say they are not perfect? जो जो नीचे के 3 चक्र हैं हार्ट से, वो चक्र आपके संसार के साथ में जोड़ने वाले हैं। जो ऊपर के हैं वो आपके अध्यात्म के साथ जोड़ने वाले, ठीक है ना। जो ये बेसिक प्रिंसिपल है, तो जो नीचे के चक्र के साथ में जुड़े हुए भाव हैं, जो शक्तियां हैं, जो वाइब्रेशन है, जो स्पंदन है, जब एक जीवन और दूसरे जीवन का बीच का जो समय है, उस समय के अंदर वो जो प्री डोमिनेंट भाव है
उस अ, भाव के अनुसार वो जो है उस लोक में अटैच उस भाव के साथ वो जुड़ जाता है, हाँ। मतलब समझिए कि उसके उसके भाव का भाव ने जोड़ना है ना साथ में। तो वो जो समय है उसके बीच में, उस समय को इंद्रलोक बोलते हैं। क्या इंद्रलोक मतलब कि जो शक्तियां हैं, जिनके भाव हैं, जो सातों के सातों अलग हो जाते हैं, जैसे इंद्रधनुष के अंदर वो अलग हो गए और मैं जाके उनमें से किसी एक भाव के साथ में जुड़ गया। तो जितने मेरे भाव जो थे वो हार्ट और उसके ऊपर के हिसाब से थे, तो वो मेरे को स्वर्ग अनुभूति होती है, हारमोनियस है। जितने मेरे भाव संसार के साथ में जुड़े हुए थे, डिसहार्मोनी के साथ में थे, वो जाके नर्क की अनुभूति होती है, क्योंकि डिसहार्मोनियस है। और जब ये भाव का, क्योंकि ये है टेम्परेरी है, इसको जैसे ही मेरा वो कंजम्पशन उसका खत्म होता है, तो मुझे वापस आके इसी तरह से शरीर को दोबारा से लेना पड़ता है। ऐसे खत्म हो गए तो भैया वापस आओ वेकेशन से। ठीक है ना? तो हाँ, ये आई डोंट नो कि मैं आपको इसको पूरी तरह से बता पा रहा हूँ कि नहीं, बट द आइडिया ऑफ स्वर्ग एंड नर्क इज नॉट कि भाई एक कोई फिजिकल वो जगह बनी हुई है जहाँ आप जाके बैठ जाने वाले हैं। द आइडिया ऑफ द स्वर्ग एंड नर्क इज रिलेटेड विद द एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच का जो समय है, उस समय में जीवात्मा कहाँ किस भाव में स्थित रहती है। क्योंकि एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच का जो समय है वो एक दिन भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। ठीक है ना? एक क्षण भी हो सकता है, ये अभी इधर छोड़ा और कहीं और जाके जुड़ गए। बट वो जो समय है, उस समय में जो जीवात्मा जिस भी भाव में रहती है, जिस लोक में रहती है, उस लोक को हम इंद्रलोक के नाम से जानते हैं। क्योंकि इंद्रलोक से, और इंद्रलोक का की व्याख्या करने के लिए इंद्रधनुष का एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा है कि उस सफेद शक्ति का ब्रेक करके 7 डिफरेंट कलर्स की शक्तियां, 7 डिफरेंट कलर्स के भाव जो है उनको हम इंद्रधनुष बोलते हैं। और यही जीव आत्मा का जो भाव डोमिनेंट है, वो उस इंद्रधनुष वाले भाव के साथ में जुड़ती है जाके, और उस स्थिति में रहती है जब तक उसका दूसरा जन्म नहीं हो जाता। तो जब तक उसका दूसरा जन्म नहीं है, तब तक हम कहते हैं वो या स्वर्ग में है या नर्क में है। मतलब या वो हारमोनियस वाइब्रेशन में है या वो डिसहारमोनियस वाइब्रेशन में। मुश्किल उस स्टेज में क्या है कि आप, वो एक भोक्ता स्टेट है, भोग की स्टेट है। उसके अंदर वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका जो ये जीवन है, मनुष्य जीवन है, ये इसके साथ इसमें दोनों स्टेट हैं, भोक्ता की भी है और क्रिएटर की भी है। आपको जो कुछ मिल रहा है उसको आप भोग कर रहे हैं, बट आपके अंदर इतनी सामर्थ्य भी है कि आप चेंज भी कर सकते हैं। जीव आत्मा की जो स्टेट है उसके अंदर चेंज करने वाले कर्म नहीं है, भोग की स्टेट है। इसलिए उसके पास में कोई उपाय नहीं है कि उसको एक्शन भोग नहीं करे, है, कर्म नहीं है वहां पर ना। उसको भोग ही करना पड़ता है। हम्म। और क्योंकि सिर्फ उसे भोग ही करना पड़ता है, तो आप सोच लीजिए कि अगर आपको कोई डिसहारमोनियस चीज का भोग करना पड़े और उसका कोई आपको अंत नजर ही ना आए, आपके पास में कोई ऐसा ऐसा हो ही नहीं, शक्ति ही ना हो कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो आपको क्या लगेगा? लगेगा ना कि नर्क में चले गए। हम्म। आपको लगेगा कि भाई ये नर्क, ना सिर्फ नर्क में चले गए, हमेशा के लिए नर्क में चले गए, क्योंकि कोई कोई इलाज ही नहीं है उसका, आपके हाथ में है ही नहीं कुछ। तो इसी तरह से स्वर्ग का है, आपके हार्मोनियस स्टेट में चले गए, आप तो स्वर्ग ही स्वर्ग हो गया, कोई दुख नहीं, कंटिन्यूअसली स्वर्ग में है।
बट भोग की स्टेट है, देयर इज नथिंग टू बी डन। until आपका अकाउंट खत्म होता है, जैसे आप कहते हैं बैंक अकाउंट कंज्यूम हो गया है, and now you need to, because क्या है, eventually जो आपकी जर्नी है, that journey is going to be towards the white color ना, out of these 7 colors आपकी जर्नी हमेशा white color की तरफ रहेगी। so that's why you need to come back to the state जहाँ पे आप सामर्थ्य के साथ में कर्म करके अपनी डायरेक्शन को, अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको आप चेंज कर सकते। So that is why this cycle continues for the soul, for the जीवात्मा। तो ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन ईदर ऑफ दीज स्टेट, स्वर्ग और नरक, या हार्मोनियस, इनहार्मोनियस, so duration, who will determine the duration in that state of for the जीवात्मा? Or it is based on your karmas? एक आपको मैं यूनिवर्सल आंसर देता हूँ कि कोई भी स्टेट के अंदर आत्म ही निर्धारित करती है। आत्मा नहीं, आत्म अगर जीवात्मा की स्टेट पर है तो आत्म निर्धारित करती है। निर्धारित कैसे करती है कि जो उसकी जो पावर ऑफ, जो भाव है, पावर एंड स्ट्रेंथ है, वो एक समय पे आके उसको लगता है कि अब मुझे वापस जाके इसके आगे जाना है, एंड एट दैट पॉइंट इट कम्स बैक। कोई अकाउंट रखने वाला और कोई नहीं है, मैं स्वयं ही अपना अकाउंट रखता हूँ। इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि जो सृष्टि है वो उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली रखती है। सो देयर इज नथिंग कि भाई ये कोई वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है जो आपका हिसाब लगा के बैठता है। It doesn't work like that. Atma is also part of Atma only. हाँ जी, Atma is also part of Atma. वो थोड़ा आपने 2-3 मिस किए ना, तो आत्म जो है, आत्म नॉट Yeah. आत्मा बट आत्म। Yeah. आत्म इज योर आइडेंटिटी, आई। Okay. वो जो आत्म है, जब वो आपके शरीर और मन के साथ में जुड़ के आइडेंटिफाई होती है तो वे आई, तो वो अहंकार की तरह से सामने आ जाती है। जब वो शरीर को छोड़ देती है और चित्त के साथ आइडेंटिफाई हो जाती है तो वो जीवात्मा बन जाती है। तो जब वो चित्त को भी छोड़ जाती है तब वो ब्रह्मलोक में चली जाती है। वो सेम आत्म है। आत्म इज द आइडेंटिटी आई, बट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट रोल्स जब वो प्ले करती है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सामने बात आती है डिफरेंट तरीके से। तो ये आत्म ही डिसाइड करने वाली है हर जगह के ऊपर उसका जीवन क्या है। आत्म मतलब आइडेंटिटी। तो जब मैं शरीर के साथ में और मन के साथ में जुड़ा हुआ तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं हर्ष चोपड़ा हूँ, मैं राम विनोद हूँ, मैं ये हूँ। जब मैं पिता के रूप में होता हूँ तो मैं ही डिसाइड करता हूँ कि मैं पिता हूँ। जब मैं पुत्र के रूप में होता हूँ तो मैं ही डिसाइड करता हूँ कि मैं पुत्र हूँ। समझ रहे बात? तो मैं जैसे जैसे रोल मैं प्ले करता हूँ उसी तरह से मेरा व्यवहार भी हो जाता है, उसी तरह से मेरी पर्सनैलिटी भी आ जाती है। तो यही रोल जो आत्मा जो है वो जीवात्मा की तरह से भी प्ले करती है। तो जब जीवात्मा की तरह प्ले करती है तो वो भोग में आ जाती है। और वही आत्मा, इसीलिए हम कहते हैं जब जब स्पिरिचुअलिटी के अंदर, अध्यात्म के अंदर आखिर में जब जाते हैं तो वही अहम ब्रह्म अस्मि हो जाता है। वही आत्मा जो है वो ब्रह्म हो जाती है। वही वो कहते हैं मद आत्मा सर्वभूत आत्मा, मेरी ही आत्मा सब भूत आत्मा में। तो वो उस स्टेज पे चली जाती है। बट इट इज आत्मा at every place. This atma identity is playing its role.
एक जगह पर वो कहती है मैं ही हूं, कि मैं ही करने वाला हूं, और एक जगह पे वही आत्मा कहती है मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। सेम आत्मा है, डिफरेंट लेवल के ऊपर आते ही उसका जो प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। सो क्योंकि ये थोड़ा आपने 2-3 मिस किए थे, उसमें ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो और ये डिस्कस करने के लिए 8-9 चैप्टर के बाद ही हो सकता है, उससे पहले होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी यहाँ आते आते ये रिकॉर्डेड है क्या? हैं। सर जी रिकॉर्डेड है क्या वो वीडियो? हाँ रिकॉर्ड सब तो किया रिकॉर्डेड थे, है। हाँ हाँ, पर वो वो थोड़ा पोस्ट नहीं बहुत किया, डाल मैं दीजिए, देखता हूँ। बिकॉज तो मैं अभी एनीवे बहुत सारे द confused हो रहा हूँ बेसिक, आत्मा और आत्मा में। हाँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट आत्म जो है ना, आत्म का मतलब आइडेंटिटी, जो मैं आइडेंटिफाई जैसे करता हूँ, तो वो आइडेंटिटी के अनुसार ही मैं बिहेव करता हूँ, उसी के अनुसार मैं अपनी ओनरशिप करता हूँ, उसी के अनुसार मैं अपना अहंकार करता हूँ। इसीलिए हम जो जो हमारा जो भारतीय सनातन धर्म जो हमारा है, उसका फोकस जो है वो आत्म शुद्धि पर है। So level of impurity decides the state of Atma. मैंने अपने आसपास क्या चीज को जकड़ के रखा है, Hmm. उससे उससे मेरा आत्म की स्टेट, मेरी स्टेट पता लगती है। तो एक अभी दिमाग में एक क्वेश्चन ही आ रहा है कि once it crosses the crown chakra and becomes Brahman, then it, जो हम लोग ये कहते हैं ना, it doesn't return back to this earth. That means there is no need to return, right? It's pure at that point in time. रिटर्न वेयर, देयर इज नो अदर प्लेस। उस स्टेट के ऊपर आने के बाद में देयर इज नथिंग एल्स। व्हेन देयर इज नथिंग एल्स, वेयर विल यू गो? नहीं वही वो इसमें कह रहे हैं ना, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था। हाँ वो मतलब मैं भी, रीबॉर्न रीबॉर्न कहते हैं नहीं, गता गतम काम हाँ काम वाला बनते। तो मेरी मेरी इस स्टेट के अंदर मुझे ये बोला जाता है कि आप वापस नहीं आओ, मगर जब मैं उस स्टेट पे चला जाता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि बस जाऊंगा कहाँ, मैं ही तो हूँ, कुछ है ही नहीं उसके अलावा, मैं कहाँ जाऊंगा? जब आप ब्रह्म की स्टेट में, अगर आप इमेजिन करें कि आप ब्रह्म की स्टेट में हैं, तो नंबर 1 सिर्फ आप ही हैं, नंबर 2 आपके अलावा कुछ है ही नहीं, जहां भी है जो भी है वो आप ही है। ना आप पैदा होते हैं, ना आप मरते हैं, आप तो एग्जिस्ट करते हैं, बियॉन्ड एग्जिस्टेंस आप हैं। ये जो माया का रूपी संसार है, ये आता है और चला जाता है, मगर आप हैं। अब आप उस स्टेट के ऊपर अगर हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि कहाँ जाएंगे आप, और जाने जाने की इच्छा क्या है? इच्छा तो है ही नहीं, जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? So there is nothing like that. That's why, but यहाँ की स्टेज के ऊपर हमें ये बताया जाए कि आप वापस नहीं आते, क्योंकि यहाँ तो हम मन से और बुद्धि से उसको क्वेश्चन करते हैं ना, और जो मेरी आत्म जो है वो आइडेंटिफाई करती है मेरे मन और मेरी बुद्धि से, मेरे विचारों से, मेरे एक्सपीरियंसेस। हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं ना कि आज जो मैं हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के कारण हूँ। जो भी मेरे पास्ट में जो हुआ है उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, ये हूँ। तो हम तो मन और बुद्धि में ही जकड़े रहते हैं ना, मन बुद्धि और चित्त। मेरे एक्सपीरियंसेस का मतलब मेरा चित्त।
मेरी बिलीफ का मतलब मेरी बुद्धि, मेरे अटैचमेंट्स का मतलब मेरे भाव, मेरा मन। तो हम लोग इसी में रहते हैं। तो जब इस स्टेज के ऊपर आत्म है तो उसको आंसर चाहिए, तो उसको फिर बताया जाता है भाई वहां जाओगे तो ऐसा होगा, वहां जाओगे तो वैसा। हर जी, इस आत्म और चेतना का भी कुछ रिलेशन है क्या? कॉन्शियसनेस। चैतन्य तो अंडरलाइन है ना, चैतन्य के बिना तो आपको अब यही नहीं पता कि आत्म है। करेक्ट। चैतन्य के बिना तो आपको ये मालूम ही नहीं है ना कि मैं हूँ। तो जब मैं हूँ ही नहीं मालूम है तो फिर आप उसकी क्या स्टेज बदलेंगे? ठीक है ना। तो चैतन्य तो है, चैतन्य तो हमेशा ही है ना। चैतन्य चैतन्य को तो हमने वो टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया था ना, इसके बिना तो है ही नहीं कुछ। वही आत्म चैतन्य रूप में चली जाती है। Just to make it a little bit crazy kind of question, कि as you said कि तुम्हारा जो भाव है येलो हो या कोई सा भी हो, भाई जिसका जो भाव है वो उस लाख में पहुंच गया। तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि आम चर्चा ये है कि भाई नरक लोक में तुम्हारी साली कोड़ों से पिटाई होती है। तो मैंने कहा जब मेरा भाव वैसा ही है और मैं उस भाव से घिरा हुआ हूँ, तो मेरी थोड़ी पिटाई हो रही है किसी की सीटी बजाने की। यार वो सीटी बजा रहा वहां बैठ के, इज हैप्पी, देन कोड़े कौन पटका रहा उस पर? जस्ट सिली क्वेश्चन। नहीं, ठीक बात कह रहे हैं आप, मगर वो ऐसा वाला भाव नहीं है कि उसका उसमें मजा आ रहा है। आज आज अगर एक आदमी नहीं मैं जेलस कह है, रहा हूँ तो भाव जो है, मान लीजिए कि जेलसी का भाव है, नहीं वो जो भी भाव है वो जो प्रमुख भाव से आप गए हो या जय भी है, तो वो जब तुम्हारा भाव है तो तुम तो उसको एंजॉय करते हो, यू देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब है। तो भाव नो। किसका है? तुम्हारा है। हाँ या तो तुम और डेफिनेटली। भाव अलग अलग, I thought तुम so. और भाव अलग अलग। तुम भाव को एंजॉय तब करते हो जब वो तुम्हें हारमोनियस लगता है। जब नहीं लगता तो तुम एंजॉय नहीं करते। अब ये तुम जो है वो आत्म है, उसकी स्टेज डिफरेंट है, मतलब हर स्टेज पे अलग है वो। तो एज ए व्यक्ति, एज ए पुरुष, एज ए मानव, जो मेरा भाव है वो मैं नहीं हूँ, मेरा भाव है। Yeah, definitely. तो मैं उसको एंजॉय कर सकता हूँ या मैं उससे दुखी हो सकता हूँ। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो नेगेटिव भाव है वो मुझे दुखी ही करते हैं, वो एंजॉय नहीं करने देते। At that time when that bhav come, they don't dukhi you at that time. Later on you get dukhi due to that, because let's say तुम्हारा भाव आया चोरी करने का, चोरी करते हुए तो मजा आ रहा था, जब मगर जब पकड़े गए तो चोरी करने की तो इच्छा हुई थी। भाव भाव चोरी का नहीं। भाव जो है, मान लीजिए कि वो, इसलिए मैं जेलसी एक भाव में एग्जांपल लिया था। yeah, sure. जेलसी एक भाव है। वो जेलसी के भाव में आप शांत नहीं रह सकते, आप सुखी नहीं हो सकते, Yeah. आप कंटेंट नहीं हो सकते। आपको जेलसी है वो जब तक है जेलसी तब तक आप कंटेंट नहीं हो सकते। टोटली डिसहार्मोनियस है। भाव तो वो है, ठीक है ना। तो मेरा मेरा कहने का मतलब है कि वो ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि अगर वो वही भाव है तो उसमें है तो वो मजा आ रहा है उसको। बट वो ऐसा है नहीं। Yeah, go ahead. वो ऐसी एनर्जी डिफरेंट है उसको। जो मैं जो भाव को अनुभव करता हूँ, वो जो भाव, वो दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए उसको नर्क बोलते हैं। अगर कंटिन्यूअसली किसी आदमी को स्ट्रेस में रख दे, Yeah. तो उसको बोले तेरा कोई चॉइस ही नहीं है, इसमें से निकल ही नहीं सकता, होपलेस, तो दुखी हो ही जाएगा, वो दुखी रहेगा वो कंटिन्यूअसली, जब तक उस भाव में से वो बाहर नहीं निकले तब तक। तो दैट दिस सीम्स टू बी, मतलब who is going to say कि भाई ये इसके पीछे साइंस क्या है, बट this seems to be the way प्रकृति is working.
Okay, let's go from basically ये जो है ये ना आपके 20 से लेकर 25 तक के जो सारे श्लोक हैं वो जो है जर्नली उन्होंने बस बेसिकली कंक्लूजन ये कहा भाई जो जिसको पूछता है वो उसी के पास पहुंचता है। हाँ, हम्म। आपने और अगर उसके- नीले रंग को पूजा, या ये है तो इनकी आप सारांश। नीले रंग के मिलोगे, बट आप ये भूल जाते हो कि नीला रंग भी सफेद से ही उत्पत्त हुआ है। नो, आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा क्वेश्चन ये था मतलब इसके एक पीछे क्वेश्चन है मेरा। इसके पीछे एम क्या है गीता का? मतलब गीता से मैं कह रहा हूँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो हो गया कि भाई जो जिसको पूजेगा उसके पास पहुंच जाएगा। अब और सब मैं हूँ, एंड पार्डन और सब में मैं हूँ, या तो भगवान सब में क्वेश्चन है। या तो मतलब लाइक हाउ आई शुड से कि भाई फिर मैं इस मतलब what he's trying to say in his कि तू मुझको पूछ। Latest studies show सब कुछ मैं ही हूँ, आप किसी को भी पूछे, ये स्टोरी सब कुछ मैं ही हूँ। नो वो तो है, सब कुछ कहा तो वो तो पहले चुके नहीं श्लोकों में वो ये कह रहे हैं भाई जिसको बजेगा ये 25 तक यही है, वो उसमें चाहे पितृ हो चाहे देवता हो या कुछ भी हो उसमें वो उसको मिल जाएगा, स्वर्ग लोग या नरक लोग जो कुछ भी है। मतलब इनमें ये तो नहीं कह रहे कि मतलब लाइक कि दे आर गलत और दे आर राइट। नहीं, ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग कि जिसको भी आप देखिए, उनका फोकस इस पे नहीं है कि आप नेगेटिव में किस तरफ जा रहे हैं, उनका No, फोकस no, है पॉजिटिव में किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर पितृलोक में पितृ के साथ में जाना चाहते हैं या एंसेस्टर्स के साथ में, तो वहां जाइए, वहां पहुंचेंगे। बट ये जो एक साइकोलॉजिकल वो चीज है कि कोई वस्तु तब तक ज्यादा अच्छी लगती है जब तक हमें मिली नहीं होती, वो तो है खैर है। और जैसे ही मिल जाती है तो उसका या मजा खत्म हो जाता है। या तो जितने भी हम लोग कुछ चीजें पाने के लिए या किसी देवता के लिए या किसी यक्ष के लिए या किसी के लिए हम पूजा करके कि भाई हमें ये चाहिए, तो जब वो मिल जाती है तब हमें लगता है कि यार ये तो नहीं, अभी हमें कुछ और चाहिए। तो हमें वो एक साइकोलॉजिकल नेचुरल चीज है कि हम लोग फिर उसके बाद में नेक्स्ट उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि है तो देने वाला तो मैं ही हूँ, करने वाला तो मैं ही हूँ, बट तुम अपने अपने भाव के हिसाब से अलग अलग जगह जाते हो। बट ये भूल जाते हो कि जब तुम नीले रंग की पूजा कर रहे हो तब भी वो जो सफेद जिसमें से वो नीला निकला है वो सफेद ही काम कर रहा है, काम नीला नहीं कर रहा। लगता है कि नीला कर रहा है, बट एक्चुअली उसके पीछे जो शक्ति है वो सफेद की है। बट तुम्हारा जो लिमिटेशन है वो ये है कि तुम कहते हो नीले रंग से मुझे नीला मिलेगा, मुझे नीले की आवश्यकता है। या तो इसलिए तुम नीले की तरफ जाते हो। आगे चलें फिर इससे। हाँ, मेरा कहना है कि ये कई सारे हमने कवर या कर लिए हैं। ये सेट है, बस वो 26वें में उन्होंने ये बताया, ये तो बहुत फेमस हुआ श्लोक है कि भाई जो भक्त मुझे प्रेम से कुछ भी दे दे ये हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये यो में बहुत भक्त्या प्रयश्यते। या ये दिखाया है कि भाई छोटी सी भी चीज कुछ भी चीज आप दे रहे हो दैट्स एक्सेप्टेबल if it is done with the good deeds or good निष्काम प्रेमी। हाँ, तो भक्ति भाव के अंदर जो भी आप ऑफर करते हैं वो कोई इसमें ऐसा नहीं कि भाई मुझे जब तक मैं 101 रुपया नहीं चढ़ाऊंगा तब तक काम नहीं चलेगा। या दैट्स व्हाट इट इज।
और ज्ञान और कर्म भाव के अंदर जो भी पॉजिटिव कर्म आप करते हैं वो सब उसको एक्सेप्ट करें। मतलब ये इन सेंस इकोनॉमिक श्लोक है कि भाई गरीब आदमी को ये ना लगे कि भाई मुझ पे तो 101 नहीं है, तो मेरा डेडिकेशन स्मॉलर है। सुदामा को ये ना लगे कि मैं सुदामा हूँ या और वो जो चावल लेके गया वो छुपाने की कोशिश करे। तो ये अब से आगे पढ़ूं। हाँ, पढ़ो। हाँ अभी तो टाइम हो है। गया। या यत् करोषि यत् अस्नासि यत् जहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभम फले एवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास संयोग युक्तात्मा विमुक्त है माम उपस्यसि। इस प्रकार जिस समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सम्मोहम समअहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषे अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इसने प्रत्यक्ष प्रकट के ऊपर नोट लिखा, जैसे सूक्ष्म शरीर से सब जग व्यापक हुआ भी अग्नि साधन द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ परमेश्वर भक्ति से भजने वालों के अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। ओके, 30वां अपि चेत सुदराचरो भजते माम अन्य भाग साधु एव समन्त्वे सम्यक व्यवस्थी ही सह। तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौंतने प्रति जाने ही नेमे भक्त प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। आई थिंक दैट्स एनफ। मैं वापस आ गया हूँ भैया, पता नहीं कंप्यूटर में क्या अभी हो। 3 ही श्लोक बचे हैं, बाकी 3 श्लोक ही बचे हैं इसमें, बाकी तो कर दो तो काम फिर उन्हें भी, या अपनी शरण गति से स्त्री वैश्य शूद्र और चंडाल आदि को भी परम गति रूप फल की प्राप्ति। माम ही पार्थ वैप्रासित्य ये अपि सुयु पाप योन्ये स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परमाम गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि भी जो कोई भी है हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्त राजस्य तथा नित्यम सुखम
लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मन मनः भव मद भक्त मदाजी माम नमस्कुरु माम एव अस्यसि त्वा एवं आत्मनम मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरा प्रायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत। ये सारे श्लोक जो है ना भक्ति भाव के प्रधान है। भक्ति भाव, बट आई थिंक बेसिकली जनरली दे आर सेइंग जब भक्ति भाव से करो या कुछ भी करो, अगर आप उसको तर्पण कर देते हो सब उसके ईश्वर को वो है करते हो तो they reach to him। और उसमें सबके लिए उसने दिया है कि भाई आप चाहे कितने भी दुराचारी हो या कोई भी हो, once you adopted it, you will be get everything as everybody else is get। दिस इज टू मच, उनके ये तो बहुत ज्यादा है। नो उसमें उसको मैं तो इसको साइकोलॉजिकली कम से कम मैं तो इसको आध्यात्मिक से आगे बाहर साइकोलॉजिकल लाता हूँ। इसमें हिंदुइज्म में ये दिया है कि तुम्हें तुम्हारे लिए सारा रास्ता है, तुम्हारे लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ और तुम्हें एक दिन ये मिलेगा। आई एम नॉट आध्यात्मिक रूप से तो हर स्टेप कहेगा, मैं तो कम से कम हिंदू धर्म की ये साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। गरीब आदमी खड़ा होकर गंगा में जो है, बात नहीं है दुराचारी, आपने दुराचारी बोला, उस पे मुझे याद है। हाँ नहीं उसको भी नहीं आता, उसको उन्होंने कहा है कि दुराचारी जब अन्य भाव से मेरा भक्त मुझको बचता है, वो जो 30वां श्लोक है उसको कह रहा जो ऐसा निश्चय वाला है वो भी मेरे पर समान अन्य कुछ भी नहीं है। ये नहीं उन्होंने कहा कि उसके कर्म का उसको फल नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं बोल रहे हो। हम लोग थोड़ा सा जल्दी में जंप कर जाते हैं कि भाई ऐसा बोल दिया, हम क्या बुरे काम किए थे, वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये क्या हो गया? नहीं ये नहीं है तो वो कहते हैं नहीं, हाँ नहीं अशोक नहीं कह रहा है ये, बट वैसे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ऐसे कई बार ऐसे समझ लेते हैं कि ऐसे हो गया, बट ऐसे नहीं है। ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस जो हम लोग इतने 8 चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, कर्म कहीं खत्म नहीं होने वाला है। भाग्य के अंदर जो आपके 3 जो पार्ट है उसके, प्रारब्ध है, संचित कर्म है और आगामी कर्म है। तो जो प्रारब्ध और संचित कर्म है वो कहीं जाने वाले नहीं है। अभी संचित कर्म को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, बहुत उसके लिए प्रयत्न लगता है। ऐसा नहीं है कि कल तक मैं चोरी करता था तो आज मैं कहूँ कि हो जाएगा, भगवान आ गए मेरे तो पास। पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि अगर वो ईश्वर का भजन करने लगेगा तो उसका सब कुछ माफ हो जाएगा। नहीं, ये माफ कहाँ लिखा है उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि वो भजन करेगा तो उसमें मैं हूँ और वो मुझ में है। बाकी उन्होंने कुछ नहीं इसमें कहा कि वो माफी मिल जाएगी तुम्हें। वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कई बार ऐसे समझते हैं कि भाई वो सब बदमाशियां करके एक दिन भगवान के नाम लेगा आ जाएगा तो सब माफ होएगा। नहीं, कहीं कहीं नहीं लिखा है। I look at this way कि अल्टीमेटली वो जो उसके भोग कर कराने के बाद उसका दरवाजा फॉर एवर बंद नहीं हुआ, जबकि जो और जो छोटे जो रिलीजन्स हैं उनमें दरवाजा बंद है आपका एक बार। जो अशोक कह रहा है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये एक आदमी है, सारी जिंदगी उसने गलत काम किया। अब उसको आपने बोल दिया भैया तू तो सिनर है, तू तो जाएगा ही वहां नर्क में ही जाएगा, तेरे पास कुछ चारा नहीं है। वो होपलेस हो जाता है, वो कहता है ठीक है मैंने 5 मर्डर किए थे, 15 और कर दूंगा, एक ही फांसी मिलेगी। या
ये जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकली ऑलवेज पुनर्जन्म की जो है ना, उसका एक साइकोलॉजिकल महत्व यही है। आपका जो है, जब इन्होंने और रिलीजन्स ने कहा है भाई हमारा तो एक ही जन्म है, जब कुछ मजा लेना अभी लेना, चाहे स्लेवरी कर लियो चाहे कॉलोनाइजेशन कर रहे हो, डजंट मैटर। हाँ, पुनर्जन्म करने वाले को ये होता है कि साले बुरा काम करेगा तो अगले साल से अगले जन्म में तुझे सुख नहीं मिल पाएगा। तो वो कम से कम एक, मैं तो साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ, इन सेंस दैट द साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस विद यू। फिर दूसरा, जैसे पहले कहा था हमने कि भाई उसको होपलेसनेस नहीं है। आदमी गलत काम करता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता है, सब करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़, बट होपलेसनेस नहीं है कि भाई तुमने गलत काम कर दिया तो अब मर गए तुम सारे, फॉर द इटर्नल टाइम यू आर इन द नर्क। वो कहते हैं दूसरे दूसरे तो रिलीजन है ना, हमारा तो रिलीजन नहीं है। ना दिस इज मैं सनातन धर्म इज द मोस्ट साइंटिफिक स्पिरिचुअल जो वे। धर्म तो एक ही है, चाहे हिंदू धर्म कह लो या वैदिक धर्म कह लो, और रिलीजन है। रिलीजन तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये है कि किस रीजन पे बेस्ड है, उस रीजन को क्या किसी का लूटना टूटना था वो करना उन्होंने किया है, कि उन पर वहां साली रोटी नहीं दूसरों की रोटी छीनने पहुंच गए। और चूंकि उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारे जैसा नहीं है वो साला आदमी ही नहीं है, मतलब आपने सारे ये यूरोपियंस ने इस्लाम ने गुलाम रखे हैं। we never heard in our Sanskriti gulam. There were servants, no doubt about economically there is always servants, but slave nahi the, as far as I know. तो धर्म और रिलीजन में तो बहुत बड़ा फर्क है ना। धर्म इज बेस्ड ऑन, मैं तो रिलीजन की डेफिनेशन रीजन पर रखता हूँ, और ये सब जो है जेरूसलम बेस है, ये साले तीनों जो है सब जेरूसलम बेस हैं, और इन्होंने इनके अनुयायियों ने इतना दुख मानवता को पहुंचाया है। मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी लगता है। ओके, आई एम सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब धर्म और रिलीजन तो अलग अलग चीज है। धर्म इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोल। धर्म इज नॉट बेस्ड ऑन फॉलोइंग ऑफ ए रूल। Religion is based on following of a rule, irrespective of responsibility. Even not, some religions don't even consider responsibility as a part of life. उसको religion में नाम कर लेके गया। Religion is up for the followers. Dharma is for the seekers. Major difference. Huge difference. Followers को तो एक रूल बता दिया गया, ये करना है, बस करना है उसे। फॉलोअर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो बुद्धि है वो उनके मन के और उनके रूल के अधीन हो जाती है। बुद्धि का प्रयोग सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए होता है, सत्य को ढूंढने के लिए नहीं होता। सीकर की बुद्धि जो है हमेशा सत्य को ढूंढने में लगी है, इसलिए सीकर जो है वो ग्रो कर सकता है। फॉलोअर कैसे ग्रो करेगा? रूल बता दिया गया है और बुद्धि जो है सिर्फ उसी को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। बुद्धि की फ्रीडम खत्म हो चुकी है। बुद्धि की फ्रीडम खत्म हो गई, ग्रो कैसे होगा? धर्म का मूल फॉलो है, अपना ये जो रिलीजन का जो जो धर्म है हमारा सनातन धर्म है, उसका मूल फॉलो करना नहीं है, उसका मूल है सीख करना, सत्य को ढूंढना। एक बेसिक प्रिंसिपल जो है उससे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर चेंज आ जाता है। हमारे पुराणों के अलावा कोई भी हमारी शास्त्र की किताब प्रश्नों से अलग नहीं है, प्रश्न से सब भरे हुए हैं।
अर्जुन को भी उपदेश नहीं दिया जा रहा, वार्तालाप हो रहा है उसके साथ में, वो भी सवाल पूछ रहा है, हर 6, 7, 8, 10 श्लोक के बाद में सवाल पूछता है. Whole idea of dharma is based on the responsibility of the role and search for the truth. Whole idea of religion is based on following of rules and justifying the rules irrespective of whether they are valid, invalid, right or wrong. You have just destroyed the person by telling him that anything that is rule-based is the only thing that is in life. You destroyed him. जिस व्यक्ति की बुद्धि को आप अधीन कर ले, वो व्यक्ति खत्म हो गया. वो सोसाइटी खत्म हो गई. उस सोसाइटी के पास में कोई भी सॉल्यूशंस के लिए सोचने की जगह नहीं है. बहुत ही एक फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो समहाउ इतने ज्यादा प्रेवलेंट हो चुके हैं ये रिलीजन वाले कि they have lost their mind. And of course I cannot blame them for losing their mind because they are followers. उनकी ट्रेनिंग बचपन से ही फॉलो करने की है, रूल बेस्ड है. हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, हमने उनको कहा कि इनको रिलीजन जो है वो ठीक है, हम मंत्र पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो भी है, बट स्पिरिचुअलिटी लेट देम स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, देन वी विल टॉक अबाउट. हम लोग इस तरह से चलते. तो एनीवे, मतलब मेरा कहने का है कि धर्म को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए रिलीजन के साथ. नेवर. रिलीजन इज जस्ट लाइक ABCD का कायदा और धर्म इज लाइक ए फिलोसॉफिकल मंत्रास. इट इज ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज. सिंपल चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति का जो बुद्धि को खत्म कर दिया गया, वो क्या आगे बढ़ेगा, क्या ग्रोथ होगी, क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्या अपनी लाइफ को बढ़ाएगा, क्या दूसरे की लाइफ को बढ़ाएगा. दूसरे की लाइफ छोड़िए, सारे संसार के अंदर हर जीव जंतु की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है फॉलोअर. चलो मैं निकलता हूँ. चलो, आपने मेरे को ट्रिगर कर दिया. मैं उसमें बड़ा अच्छा था. मुझे एक बार फिर से सुनना पड़ेगा इसको. ये पिछले 2-3 जो है बड़ी गूढ़ बातें जो है हुई हैं इसके ऊपर. इट्स वेरी गुड. चलिए ठीक है. ओके. So anyway, so coming back to our own discussion, one at no point is saying you are not responsible for what you are doing. But at every point he is saying, despite what you have done, I am available to you. Yes. The only thing is you have to change your way. Mhm. So it's not कि भाई भगवान ने माफी दे दी सबको. जाओ, कर्म बंधन से माफी नहीं मिलने वाली है. तो कर्म बंधन को तो एग्जॉस्ट ही करना पड़ेगा. चलो, तो आप 15 मिनट्स हैं, थिंक बंद करो. आई थिंक हाँ ठीक है. और राम नो दैट एनी क्वेश्चन हो तो भाई गो अहेड सर.